Hello, everyone, and welcome to another episode of Talk It Out. My name is Mohammad Afif Faisal, and I am the program lead for computing and CET here at ICE. So, today we have two students of the computing background that have joined us as a guest. So, first of all, let's start off with Miss Pinky. So, welcome to the show, Miss Pinky. Hi there, it's me Pinky Parpiani, student at ICE. It's my fourth semester over here. Okay, welcome, Pinky. Welcome to the show. And next we have Mr. Sharia here as our guest. Hello, I'm Shahriyar. I'm currently enrolled in the fourth semester of ICE, and aside from that, I'm a senior content editor at Tech for Gamers. Okay, that's great to know both of you. So, if I may ask, starting from Mr. Shahryar, Shahryar, what's your background? What was the education you did before joining ICE? So basically, I was doing as usual, as most students do. I studied in local schools till eighth grade, and then I switched to Hedri Public School for my matriculation. And after that, I did pre-engineering from Government Islamia College. And after that, I was doing my BCom, but due to COVID restrictions, I had to let that go, and I had some other personal reasons too. So that was my early education before coming to ICE. Okay, that's good. And if I ask you, Miss Pinky, what's your prior qualification? Before coming to ICE, I have done my matric and intermediate from government college from small town. Further continue my study, I moved to Karachi and started my journey at ICE. Okay, that's different. We have a comparison of two students. One, I believe, Mr. Sharia is from Karachi, and Miss Pinky, who is from a different background, I guess somewhere from Interior Sindh. Okay, that's good. Now, once you guys have joined ICE, there would be some difference that you got to know. First of all, why ICE? कैसे पता चला ICE के बारे में? सो बेसिकली मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे जो है एक ओपन हाउस सेशन के बारे में पता चला, तो मैंने वो अटेंड किया। फिर जो है मुझे पता चला कि इस तरीके से जो है HN क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप असाइनमेंट बेस्ड स्टडीज़ करके फॉरेन पाथवे का आपको मिलता है क्वालिफिकेशन का UK का। तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो आइस एंड आई जॉइंड। And how did you get to know about ICE, Pinky? When I was in incubator, then I know about ICE. Then मैंने सोचा यहाँ से मैंने academic से पूरा प्रोसेस पूछा कैसे होता है और क्या होता है। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम बेस्ड जो है ना डिग्री नहीं है, वो सारी जो पूरी डिग्री है वो असाइनमेंट बेस्ड डिग्री है। तो मैंने इस वजह से आइस को चूज़ किया। और सेकेंड थिंग वॉज डैट कि मैं इंक्यूबेटर में काम करती थी। एक यूनिक और वैल्यूएबल था कि हम नेटवर्किंग के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड थर्ड रीज़न वॉज डैट कि यहाँ पे जो बैचलर्स है वो 3 इयर्स की है। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 इयर्स हम इजीली मूव हो सकते हैं अब्रॉड के लिए। Okay, so that's a very valid point, as Ms. Pinky has stated कि 3 years की हमारी qualification है, 3 years का bachelor's है, after which you get a chance to move abroad. So if I ask the both of you right now, if I ask Shahryar and Ms. Pinky, did you both plan to travel abroad? इसीलिए ये qualification select किए for your pathway बाहर जाने के आप लोग के लिए roadway open हो जाएगा? तो बेसिकली मेरे लिए इस एजुकेशन सिस्टम में 2 पॉजिटिव्स थे। फर्स्ट तो ये था कि जब मैं बीकॉम कर रहा था तो मेरे लिए साथ में जो है अपना फ्रीलांसिंग करियर कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि एनुअल एग्जामिनेशंस जो होती हैं उसमें कोर्स वर्क बहुत ज़्यादा होता है। साथ में जो है कोविड आ गया था, तो कोविड के वक्त में जो है हमारे पास टाइम फ्रेम कम था और कोर्स वर्क हमारे पास बहुत ज़्यादा था। तो एक तो मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि यहाँ पे मैं आके जो है ना मुझे एग्ज़ाम्स की टेंशन नहीं होगी, मैं असाइनमेंट बेस्ड स्टडी करके अपने जो कोर्सेज हैं उनको कंप्लीट कर सकता हूँ। सेकंड ये था कि मुझे जो है फॉरेन क्वालिफिकेशन चाहिए थी और मुझे जो है बाहर जाना था UK, तो उस वजह से जो है मैंने आइस को चूज़ किया। Okay, the foreign qualification. And if I ask you, Ms. Pinky? आफ्टर कंप्लीटिंग माई 4th सेमेस्टर आई विल अप्लाई फॉर अब्रॉड। जो हमने यहाँ पे स्किल्स सीखी हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपना फर्दर टेक में जो है कंटिन्यू करूँगी करियर। Okay. And if I ask about the journey in ICE as a student life, I'm sure you guys must have enjoyed. आपने enjoy तो किया होगा अपने student life, friends होंगे, and I believe both of you are in 4th semester, so you guys must be friends as well. तो क्या different experiences या journey में different activities, events वगैरह आप लोगों ने attend किए? So how was it? क्या आपके how was the journey like, if I ask you? टू बी ऑनेस्ट
स्टार्टिंग में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हमें जो है ना सिर्फ रिटन वर्क करना होगा, लेकिन आइस आने के बाद हमें पता चला कि रिटन वर्क के साथ हमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी करवाए जाते हैं। प्रैक्टिकल जो है हमने जो है ना खुद ML के एल्गोरिथम्स परफॉर्म किए, हमने डेटाबेस में जो है हमने चैटबॉट्स बनाए, इस तरह के डिफरेंट जो है हमने यूनिट्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी किया। अलॉन्ग विद दैट हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली इस तरह के इवेंट्स में। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो यहाँ पे आके मुझे जो है ना इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जहाँ पे मैं नेटवर्क कर सका, लोगों से बात करने का तरीका सीखना कि क्या कहना है, किस तरीके से कहना है, किस तरह अपनी बात जो है ना अगले तक पहुँचानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आके मुझे पता चली, जो कि मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल था ओवरऑल मेरे करियर में, जो कि मैंने बाद में जो है अपने करियर में भी इंप्लीमेंट करना शुरू किया। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको मल्टीपल मीटिंग्स करनी होती हैं, आपको डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ जो है डिस्कशंस करनी होती है, नेगोशिएशंस करनी होती हैं, तो वहाँ पे जो है ना आइस का एक्सपीरियंस मेरा बहुत हेल्पफुल रहा। Okay. And what about you, Pinky? एट IC वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक हमारे जो असाइनमेंट्स होते हैं वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं, उसमें हमने डिफरेंट असाइनमेंट में सीखा कि एक इवेंट मैनेजमेंट कैसे होती है, और हमें जो है वो प्रैक्टिकल कोर्सेज थे जिसने हमने हैंड ऑन एक्सपीरियंस लिया। लाइक इन ऐप डेवलपमेंट, कैसे ऐप डेवलप हो सकता है, उसमें कैसे काम होगा, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। ओके, दैट्स गुड। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से, जो कि आप लोग दोनों ने मेंशन किया, आपने भी एंड पिंकी ने भी, अबाउट assignment based study. The qualification that is being offered here at ICE right now, it's all assignment based. It's different from the traditional system, जो I believe आप लोग दोनों traditional system से belong करते हो, और आप लोगों ने पहले traditional system intermetric के examinations दिए होंगे. So here it's all assignment based studies plus practical approach है. Since you both are in computing field, तो different practical courses भी आप लोगों ने implement किए होंगे and practical studies आप लोगों ने की हैं. So that's good, that's great. Any specific experience, कोई learning curve आपको मिला हो अपने time के अंदर? Any fun experience you would like to share with our audience right now? अगेन जो है मेरे लिए तो ज़्यादातर जो फ़न का पार्ट रहा है वो ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम से मैं आया था वहाँ पे इंटर और मैट्रिकुलेशन में इतने हम लोग इवेंट्स मैनेजमेंट और वगैरह ये चीज़ हम नहीं करते थे। तो आइस में आने के बाद जो मुझे इस चीज़ का मौका मिला है, वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो मैंने डिफरेंट इवेंट्स में जो है ना मैंने एज अ वॉलंटियर काम किया। मैं यहाँ पे करंटली हेड ऑफ़ काउंसिल हूँ, तो मैं 5 सोसाइटीज़ को भी मैनेज कर रहा हूँ और डिफरेंट इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ जो थी एक तरह का लर्निंग कर्व भी था, डिफ़िकल्टी भी थी, लेकिन साथ में इसको सीखने में मज़ा भी बहुत आया हमें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है ना यही एक्सपीरियंस जो है वो आपको बेटर पर्सन बनाते हैं या बेटर जो है इंडिविजुअल बनाते हैं अपनी फील्ड में। तो इस चीज़ का जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है आइस में आके। चलें, अच्छी बात है, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने मिली यहाँ पे। एंड व्हाट अबाउट यू, आपका कोई ऐसा लर्निंग कर्व या एक्सपीरियंस यहाँ पे? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। लाइक डिफरेंट इवेंट्स में वॉलंटियरिंग की है, और उसके बाद एक हमारा इवेंट हुआ था सॉल ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आई वाज वर्किंग एज अ लीडरशिप कि बैकग्राउंड में कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। वो मैंने बहुत अच्छे से सीखा कि एक इवेंट मैनेजमेंट कैसे हम कर सकते हैं रियल लाइफ में। ओके, सो लीडरशिप क्वालिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि इफ़ students at this age are learning during their university time, I would say it's a very important, very essential quality जो कि students gain कर रहे हैं यहाँ पे through different events, activities and different journeys जो यहाँ पे perform कर रहे हैं. Now definitely आप लोग के different plans होंगे once you complete your HND here from ICE. What's your different career progression like next? Where do you see yourself next? क्या आप लोग का plan है? अच्छा, बेसिकली अभी मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर लिया यूके में, क्योंकि मुझे जो है ऑन साइट जाके जो है वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करनी है। ऑलरेडी मुझे जो है कुछ यूनिवर्सिटी से कंडीशनल ऑफर लेटर्स भी मिल चुके हैं। तो अभी मैं वो गो थ्रू कर रहा हूँ और अपने जो है ना एवेल्युएशन कर रहा हूँ कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी पिक करनी है अपने नेक्स्ट जो है एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। और वंस वो हो जाता है तो फिर जो है ना मुझे आईटी के सेक्टर में जो है अपनी जगह बनानी है, क्योंकि मैं शुरू से जो है मुझे टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा जो है इंस्पिरेशन भी है, पैशनेट भी हूँ मैं उसके बारे में। तो मुझे जो है ना उस तरफ जो है उस फील्ड की तरफ जाना है। तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में मैं अपने आप को किसी आईटी फील्ड में किसी अच्छी पोजीशन पे देखता हूँ। Chale, that's great that you have a future goal as well. And is it the same with you, Miss Pinky? You are also planning somewhere abroad? जी सर, आफ्टर जब मेरा 4th सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अब्रॉड। अब्रॉड आप अप्लाई करोगे? ओके, दैट्स गुड। सो आर यू प्लानिंग टू ट्रैवल अब्रॉड या आप पाकिस्तान में भी देख रहे हो? हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर अब्रॉड चली गई तो वेल एंड गुड, ना तो ऑनलाइन करूँगी। चले, दैट्स ग्रेट दैट अगर आप अब्रॉड नहीं भी जा सके, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ अनएबल टू गो अब्रॉड, स्टिल ऑप्शंस आर देयर। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान से भी हम डेफिनेटली कर सकते थ्रू द सेम स्ट्रीम, थ्रू द सेम ब्रिटिश एजुकेशन।
that being said, I would like to ask one more thing, that since आप लोग के different friends, colleagues and relatives वगैरह भी इस age group में होंगे, so would you recommend anyone else to join ICE? इन माई ओपिनियन मैं ये कहूँगा कि आइस की एक चीज़ अच्छी ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। इन केस अगर आपने यूके जाना है, आपको उसका पाथवे चाहिए, तो आपको वो भी प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको वहाँ नहीं जाना, आपकी कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप यहाँ रह के अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना चाह रहे हो, तो आपके पास वो ऑप्शन भी है। और मैं ये भी कहूँगा कि मोस्ट स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये होता है कि वो कहते हैं कि हम एक साइड से दूसरी साइड पर स्विच करेंगे तो अनकम्फर्टेबल होगा। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक आप अपने आप को अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में नहीं रखते, तो आप कुछ सीखते नहीं हो। अगर आप कंफर्ट लेवल के अंदर ही हमेशा रहोगे, तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। तो ये एक न्यू मोड ऑफ एजुकेशन है। इस वजह से मैं इसको रिकमेंड करूँगा लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, अब हमें जो हमारा आउटडेटेड कोर्स वर्क है इंटरमीडिएट में और मैट्रिकुलेशन में, वो जो है अब इंडस्ट्री में आपको काम नहीं आता। आपको अपने आप को कहीं ना कहीं से अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को रख के कुछ सीखना पड़ेगा, तभी जो है आप जो है ना इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकते हैं। तो मैं न्यू स्टूडेंट्स को इनकरेज करूँगा कि वो इस तरह के कोर्सेज में पार्टिसिपेट करें, यहाँ पर जो है ज्वाइन करें और कुछ सीखें नया, जो कि उनको काम आ सके। So that means you also like taking up new challenges. Okay, that's a very positive point. And what about you, Miss Pinky? Do you also like taking up challenges, and would you also recommend? आई विल डेफिनेटली रिकमेंड अगर किसी का मेडिकल बैकग्राउंड है, आर्ट का बैकग्राउंड है, तो हम ये सोचते हैं कि जब मैं भी आईसी में एडमिशन ले रही थी, तो मेरा ये था कि कोडिंग आएगी या नहीं आएगी, मैथ्स नहीं आती। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर हमारा जैसे ही ख़त्म हुआ, तो हमें बहुत सारी चीज़ें आसान होने लगी। तो आई विल रिकमेंड देम कि भाई आप एडमिशन लो, और 2 साल के बाद आप बाहर भी जा सकते हैं, ना तो आप अपना पाकिस्तान में यूके की डिग्री कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यस, सबको रेकमेंड करना चाहिए कि डिफरेंट नंबर 1 चैलेंजेस भी लें, एंड नंबर 2 डिफरेंट एजुकेशन एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करें, स्पेशली ब्रिटिश एजुकेशन, जो कि ब्रिटिश इज़ दी पायनियर इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन। और अगर वही डिग्री आपको एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट पाकिस्तान में मिल रही है, then definitely every student should opt for that. Now, if I ask you guys, since we are moving towards the conclusion of our episode today, any specific suggestion or recommendation you would like to give to our audience, or maybe to your fellow friends जो कि अभी start में आप लोग के साथ ही हैं, start से आप लोग अब तक साथ हैं? Any recommendation or anything you guys would like to say to them, or any message? मैं तो एक सिंपल ही चीज़ कहूँगा, ask questions and get to know things that you don't know yet. जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, जब तक आप न्यू चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ोगे, आप नहीं जान पाओगे चीज़ों को। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप न्यू सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है ना सवाल करें, आप जो है ना उन चीज़ों के बारे में पूछें जो यूजुअली क्लास में नहीं बताई जाती, या जो है नॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी तरीके से जो है ना आप स्टैंड आउट करेंगे बाकी स्टूडेंट्स से। तो मेरी यही फाइनल सजेशन होगी स्टूडेंट्स के लिए। Very rightly said. Good words. And what about you, Miss Pinky? Any recommendations, any message you would like to give to your fellow friends or anyone who joins new here? कि उनको फर्दर, अगर आई वाले हो तो फर्दर वो कंटिन्यू करें यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर आपका जो फाउंडेशन ईयर है वो भी यूके बेस्ड है, और आपकी HND भी जो होगी वो भी आपकी यूके बेस्ड हो जाएगी। तो इससे आपको फर्दर लाइफ में भी बहुत चांसेस हैं मूव होने के। तो आई विल डेफिनेटली से कि आप ज्वाइन करें। Okay, so great words, and it was lovely having both of you today in our episode. So thank you everyone for joining us. See you all soon.